हाय फ्रेंड्स, ये सोशोलॉजी 10,000 MCQ सीरीज का पार्ट 10 है। क्वेश्चन नंबर 451 से क्वेश्चन नंबर 500 तक। ये सोशोलॉजी का 10,000 MCQ सीरीज आपको NTA UGC नेट या सोशोलॉजी में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशेंट है। इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है सोशोलॉजी UGC नेट और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 451। M.E. Opler explained culture integration using the concept of। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके M.E. Opler ने कल्चर इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन किया है? A. पैटर्न्स, B. कल्चर एरिया, C. थीम्स, D. सर्कल्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन C, थीम्स। पैटर्न्स जो है वो है रूथ बेनेडिक्ट के पैटर्न्स ऑफ कल्चर। तो ये जो ओपलर है वो कॉन्सेप्ट ऑफ थीम को यूज करके एक्सप्लेन किया है कल्चर इंटीग्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 452। थीम्स आर जनरल मोटिवेशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर। ये जो ओपलर के थीम्स आर जनरल मोटिवेशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर A. नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, B. सोसाइटी एंड स्टेट, C. लीडिंग कल्चर कॉम्प्लेक्सेस, D. वेरियस सेट्स ऑफ बिहेवियर टाइप्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन D, वेरियस सेट्स ऑफ बिहेवियर टाइप। थीम्स आर जनरल मोटिवेशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेट्स ऑफ बिहेवियर टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 453। लियोनेल ट्रेलिंग डिफाइंड this as the implicit, explicit and unutterable expressions of A. etiquette, B. norms, C. manners, D. prayers। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन C, manners। लियोनेल ट्रेलिंग डिफाइंड manners as the implicit, explicit and unutterable expressions of। Question number 454. Style of life is a concept developed by। Style of life का concept जो किसके द्वारा डेवलप हुआ है? A. रूथ बेनेडिक्ट, B. रॉबर्ट रेडफील्ड, C. रेडक्लिफ ब्राउन, D. टायलर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन B, रॉबर्ट रेडफील्ड। स्टाइल ऑफ लाइफ इज ए कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय Robert Redfield। Question number 455. Style of life would refer to what of a culture is the most A. singular and significant, B. fundamental and permanent, C. ancient and valued, D. modern and progressing। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन B, fundamental and permanent। Style of life would refer to what of a culture is the most fundamental and permanent। Question number 456. Opler illustrated his concept of themes with his account of the A. Egyptian mummies, B. Indian caste system, C. Roman gods, D. Apache Lifeway। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है D इज द करेक्ट आंसर, Apache Lifeway। उनके बुक भी एक है कि Apache Lifeway बोल के उनके बुक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 457। Culture change refers to change। Culture change refers to change A. in material aspect of culture only, B. in non-material aspects of culture only, C. in any aspect of culture, D. in important aspects of culture only।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। कल्चर चेंज रेफर्स टू चेंज इन एनी एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। Question number 458. Culture change may take place due to. Culture change may take place due to A. Natural environmental changes, B. Contact with another culture, C. Evolutionary change within the society, D. All the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। कल्चर चेंज may take place due to natural environmental changes, contact with another culture or evolutionary change within the society. Question number 459. Every culture contains both universals and A. trivialities, B. superficialities, D. C. variables, D. alternatives. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन C. Variables. Every culture contains both universals and variables. Question number 460. Dash constitute the universals in a cultural system. Dash constitute the universals in a cultural system. A. Pride and prejudice. B. Considerations of mind and time. C. Sex and ceremony. डी ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, कॉन्सिडरेशंस ऑफ माइंड एंड थाइम, मेरा और तेरा। क्वेश्चन नंबर 461. Culture change is rapid during a period of. Culture change is rapid during a period of A. social reform, B. revolution, C. technological advancement, D. all the above. इसका करेक्ट आंसर है C. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के टाइम में कल्चर चेंज जो है रैपिडली चेंज होता है कल्चर में। क्वेश्चन नंबर 462. चेंज इन कल्चर इज डिटरमाइंड बाय सच जियोग्राफिकल फैक्टर्स as A. mineral resources, B. climate and rainfall, C. quality of soil, D. all the above. इसका करेक्ट आंसर है all the above. Question number 463. Modern education in England led to. इंग्लैंड में जो मॉडर्न एजुकेशन के क्या हुआ उसके बाद? ए. इंडिविजुअलिज्म, कैसे ग्रो किया? ए. इंडिविजुअलिज्म, B. nationalism, C. expansionism, D. all of these. इसका करेक्ट आंसर है all of these. Modern education in England led to individualism, nationalism and expansionism. Question number 464. In India, the Purohit family priest said the following as the aims of a student. A. Shraddha, faith, B. Praja, progeny, D. Dhana, wealth, C. Dhana, wealth, D. all of these. इसका करेक्ट आंसर है D. all of these. Question number 465. Ancient India witnessed remarkable progress in the sphere of. Ancient India में इनमें से क्या सारे बढ़ोतरी देखने को मिला? A. Mathematics, B. Astronomy, C. Astrology, D. all of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. Ancient India witnessed remarkable progress in the spheres of mathematics, astronomy, astrology, ये सारी चीज. चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके जो दरबार में थे नवरत्न, जो 9 jewels, जो बराहमीर, कालिदास, ऐसे. तो एंशिएंट इंडिया में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट जो है वो जीरो के बारे में बोला कि, तो ये सारे थे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे प्रोग्रेस देखने को मिला था एंशिएंट इंडिया में. क्वेश्चन नंबर 466. व्हिच इज रिलेवेंट टू कल्चर चेंज?
which is relevant to culture change. A. Geographical environment. C. Changes in the modes of production. C. Discovery and inventions. D. All the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी। ये सारे कल्चर चेंज के लिए रिलेवेंट है। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट भी, चेंजेस इन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन भी, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन भी, और ये सारे। क्वेश्चन नंबर 467, हु रिगार्डेड द मोड ऑफ प्रोडक्शन एज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ कल्चर। इनमें से कौन कहा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वह केवल डिटर्मिनेंट है कल्चर के। बी लॉन्बर्ग, ए लॉन्बर्ग, बी मार्क्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स, डी टायलर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स रिगार्डेड द मोड ऑफ प्रोडक्शन एज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ कल्चर। वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 468, culture change is A. an illusion, B. restricted to primitive societies, C. restricted to developed societies, D. a universal phenomenon। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है D. a universal phenomenon। culture change is a universal phenomenon। change is the unchanging law of नेचर। तो कल्चर हो या किसी भी चीज हो, चेंज तो होगा ही होगा। तो कल्चर चेंज इज यूनिवर्सल फेनोमेनन। क्वेश्चन नंबर 469, मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए. कल्चर इज नॉट ओनली इन आइसोलेशन। बी. कल्चर इज सिंथेटिक इन कैरेक्टर। सी. कल्चर सेफगार्ड्स आर एफिमेरल। डी. कल्चरल एक्सपोजिशन इज डिजास्टर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कल्चर सेफगार्ड्स आर एफिमेरल। कल्चर सेफगार्ड्स जो है वो टेम्पोररी होता है, परमानेंटली कल्चर सेफगार्ड्स काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 470, व्हिच वुड हिंडर कल्चर डिफ्यूजन। व्हिच वुड हिंडर कल्चर डिफ्यूजन में कल्चर डिफ्यूजन को कौन बाधा देगा? ए. वॉर, बी. कॉमर्स, सी. कल्चरल टाबूज एंड डी. कम्युनिकेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कल्चरल टाबूज। कल्चरल टाबूज वुड हिंडर कल्चर डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 471, व्हिच इज a significant factor in relation to cultural variability। Which is a significant factor in relation to cultural variability? A. Physical features, B. People's adaptability, C. Technological differences, D. All the above। इसका करेक्ट आंसर है all the above। ये सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर के हिसाब से काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 472, the growing impact of UNESCO will result in A. demolition of cultural barriers, B. imposition of Western culture, C. sustaining cultural variability, D. development of universal culture। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, sustaining cultural variability। क्वेश्चन नंबर 473, culture contact usually results in a culture change in। culture contact usually results in a culture change in A. the dominant culture, B. the less developed culture, C. both A and B, D. neither A nor B। दो कल्चर्स कांटेक्ट में आएंगे तो उनके क्या होगा, ज़्यादा चेंज किस में आएगा, डोमिनेंट कल्चर में या लेस डेवलप्ड कल्चर में या दोनों में? इसका करेक्ट आंसर जो है वो दोनों में, क्योंकि दो कल्चर कांटेक्ट में आएंगे तो वो टू वे प्रोसेस होगा। चेंज जो है वो टू वे प्रोसेस होगा, वन वे प्रोसेस नहीं होगा चेंज का, है ना। जैसे संस्कृताइजेशन के बारे में आप
हमें देखा कि सांस्कृतिकाइजेशन में टू वे प्रोसेस में चेंज होता है। डोमिनेंट कल्चर में चेंजेस आता है तो लेस डेवलप्ड जो फॉलो करता है उसके भी कुछ इम्पैक्ट आता है डोमिनेंट कल्चर में। क्वेश्चन नंबर 474, कल्चर कॉन्टैक्ट में रिजल्ट थ्रू, कल्चर कॉन्टैक्ट में रिजल्ट थ्रू ए ट्रेड, बी माइग्रेशन, सी टूरिज्म, डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये सारे चीज के थ्रू कल्चर कॉन्टैक्ट हो सकता है, ट्रेड के थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 475, attempting to discover the culture area where the sword was invented and how it was introduced to other places would illustrate। sword जो एक जगह में इन्वेंट हुआ, फिर दूसरे जगह को, दूसरे सारी जगह को वो स्प्रेड हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ए इवोल्यूशनिज्म, बी डिफ्यूजनिज्म, सी फंक्शनलिज्म, डी फेनोमेनोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है डिफ्यूजनिज्म, है ना। डिफ्यूजन के जरिए ये जो स्प्रेड किया दूसरे एरिया को। क्वेश्चन नंबर 476, कल्चरल सब्स्टिट्यूशन is a process of cultural substitution is a process of क्या है cultural? A determinism, B change, C relativity, D alternatives। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चेंज। कल्चरल सब्स्टिट्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज। क्वेश्चन नंबर 477, द वर्ड कल्चर इज ए ट्रांसलेशन ऑफ द जर्मन वर्ड। कौन सा जर्मन वर्ड है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कल्चर कहेंगे? ए कल्चर KULTUR, बी कल्चर क्रेज, सी कल्चर हिस्टोरिकल, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए कल्चर का। ये स्पेलिंग हुआ जर्मन का, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 478, एक्सचेंज ऑफ कल्चर ट्रेड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड। जो कल्चर ट्रेड या कल्चर कॉम्प्लेक्स का जो एक्सचेंज होगा दो कल्चर के बीच, इसको हम क्या कहेंगे? ए ट्रांसकल्चरेशन, बी एनकल्चरेशन, सी कॉन्ट्राकल्चरेशन, डी कल्चराइजेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ट्रांसकल्चरेशन। Exchange of culture traits and complexes is called transculturation. Question number 479. When a growing child learns to conform to his own culture traditions, the process is designated as, है ना। तो अपने खुद के कल्चर ट्रेडिशन को कन्फर्म करने के वो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन सीखता है, तो उसको जो सीख मिलती है कल्चर ट्रेडिशन, इसको हम क्या कहेंगे प्रोसेस को? ए ट्रांसकल्चरेशन, बी एनकल्चरेशन, सी कॉन्ट्राकल्चरेशन, डी एकल्चरेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशलाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं, एनकल्चरेशन। क्वेश्चन नंबर 480, some German speaking writers, Grabner, Ankerman, Schmid, being the prominent among them, presented a theory of diffusion in the early years of the century. Their theory consists of a belief in evolution tempered with diffusion. They said that the various culture complexes develop at various times in different parts of the world and later on diffuse over corresponding portions of the earth. Such diffusion is a continuous process, and layers of diffused in culture traits may be identified in a culture. This school of thought has been called। ये जो ग्रैबनो, एंकरमैन, स्मिथ, ये जो जर्मन सब थे तीनों ने
ये जो डिफ्यूजन थ्योरी दिया कि वेरियस कल्चर कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स कल्चर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में आया, तो उसके बाद वो डिफ्यूज हुआ दूसरे एरियाज को, डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड को स्प्रेड हुआ। तो इस टाइप का स्कूल ऑफ थॉट, उनके वो जो स्कूल को बिलोंग करते हैं उस स्कूल के बारे में पूछा है, कौन से स्कूल को ये ग्राइबनर, अंकरमैन, स्मिथ बिलोंग करते थे। ए डिफ्यूजनिस्ट स्कूल, बी इवोल्यूशनिस्ट स्कूल, सी फंक्शनलिस्ट स्कूल, डी कल्चर क्रेज स्कूल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कल्चर क्रेज स्कूल। हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ए डिफ्यूजनिस्ट नहीं, उनके स्कूल जो स्कूल को बिलोंग करते थे वो था कल्चर क्रेज स्कूल। कल्चर क्रेज जो है जर्मन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 481, व्हेन कल्चर ट्रेड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस have been diffused, we talk about diffusion. But when a whole way of life is in the process of change under the influence of another culture, we call it, हम क्या कहेंगे? A enculturation, B acculturation, C culture change, D culturalization. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है acculturation. When culture traits and or complexes have been diffused, we call it diffusion. Culture को trait या complex कुछ diffuse हुआ दूसरे सोसाइटी को, लेकिन whole way of life change होने लगा दूसरे कल्चर के इन्फ्लुएंस से, तो हम इसको क्या कहेंगे? acculturation. Question number 482. Who differentiated between enculturation, transculturation and acculturation? A. Krueber, B. Herskovits, C. Linton, D. Clark Wesley. इसका करेक्ट आंसर है B. Herskovits. Herskovits differentiated between enculturation, transculturation and acculturation. Question number 483. Herskovits used the term dash for socialization. Socialization के लिए Herskovits कौन सा टर्म यूज किया? A. Culturalization, B. Enculturation, C. Acculturation, D. Transculturation. इसका करेक्ट आंसर है B. Enculturation. Question number 484. In contemporary India, after centuries of exploitation and material impoverishment, the Chotnagpur tribes have developed a new-found sense of strength and opposition, which has resulted in the Jharkhand movement demanding autonomy in cultural, social, economic and political matters. This process is called. ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? A. Retaliation, B. Revolution, C. Contra-acculturation, D. Transculturation. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है Contra-acculturation. ये जो प्रोसेस हुआ झारखंड मूवमेंट, इसको हम कॉन्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन कहेंगे। उनके जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, तो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में वो जो मूवमेंट खड़ा किया मेन स्ट्रीम कल्चर के अगेंस्ट में, उनके खुद के कल्चर को ऑटोनॉमी मिलने के लिए, खुद के रीजन को ऑटोनॉमी मिलने के लिए, तो वो जो प्रोसेस था उसको हम कॉन्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन कहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM पार्टी भी फॉर्मेशन हुआ शिबू सोरेन के द्वारा, तब ये जो झारखंड मूवमेंट का ही रिजल्ट हुआ कि झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट फॉर्म्ड इन 2000 में झारखंड स्टेट फॉर्म हुआ, तो ये झारखंड मूवमेंट का रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 485. सुपर ऑर्गेनिक is a term used by Dash in his Principles of Sociology 1876 to distinguish different levels of the realm proceeded in the organic realm and finally in the superorganic realm. A. Auguste Comte, B. Herbert Spencer, C. L.T. Hobhouse, D. Alfred Krueber. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। सुपर ऑर्गेनिक
और इनके जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी बुक में भी हम पहचान सकते हैं कि ये है हर्बर्ट स्पेंसर, और सुपर ऑर्गेनिक व्यू जो दिए थे वो है हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 486, हु स्पोक ऑफ एडस एंड इथस as two aspects of culture? एडस एंड इथस ये कल्चर के दो एस्पेक्ट है, किसने कहा? ए अल्फ्रेड क्रोएबर, बी राल्फ लिंटन, सी क्लॉकहॉर्न, डी बी टाइलर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है क्रोएबर। क्रोएबर स्पोक ऑफ एडस एंड इथस as two aspects of culture. Question number 487. The bewilderment, frustration and disorientation that an unprepared visitor experiences as a result of contact with a different culture is known as. Bewilderment, frustration, disorientation that an unprepared visitor experiences as a result of contact with a different culture is known as. हम किसी दूसरे ट्राइब या दूसरे कल्चर को जाएंगे तो उनके कुछ ऐसे प्रैक्टिस कस्टम्स होगा तो हमें आश्चर्य लगेगा कि ऐसे ये क्या प्रैक्टिस हुआ, ये क्या कस्टम हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारे अंदर जो ये आश्चर्य, ये फ्रस्ट्रेशन, डिसोरिएंटेशन या कंफ्यूजनेस आया तो ये इसको हम क्या कहेंगे? ए डिसफंक्शनल इंटीग्रेशन, बी कल्चरल रिलेटिविज्म, सी कल्चर शॉक, डी ट्रांसकल्चरेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कल्चर शॉक। बहुत सारे अफ्रीकन ट्राइब्स है, उनके कुछ जो कस्टम्स या प्रैक्टिस है तो हमें वो आश्चर्य करने वाला है, तो हम ऐसे देखते रह जाएंगे कि ऐसे कुछ प्रैक्टिस, ऐसे कुछ उनके बीच कस्टम्स है, तो ये हमें जो शॉक मिल जाता है, शॉक मिलता है इसे, तो इसे हम कल्चर शॉक कहेंगे। Question number 488. Subcultures which are in the process of being assimilated in the general culture have been called. कुछ सबकल्चर है जो assimilate होने लगे, मतलब मिल जाने लगे हैं जनरल कल्चर में, इसे हम क्या कहेंगे? ए कॉन्ट्रा कल्चर्स, बी कन्वर्जेंट कल्चर्स, सी एक्लचरेशन, डी एसिमिलेटिंग कल्चर्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कन्वर्जेंट कल्चर्स। सब कल्चर्स व्हिच आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग असिमिलेटेड इनटू द जनरल कल्चर्स हैव बीन कॉल्ड कन्वर्जेंट कल्चर्स। क्वेश्चन नंबर 489. द मोस्ट इफेक्टिव बैरियर टू कल्चरल डिफ्यूजन इज। कल्चरल डिफ्यूजन के लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या है? ए डिस्टेंस, बी cultural differences, C mountains, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है distance। The most effective barrier to cultural diffusion is distance। आज के समय में इंटरनेट के era of internet, era of globalization, ये डिस्टेंस फील नहीं होता है ना, हम क्लोजली एसोसिएटेड हो सकते हैं। हम इंडिया में हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएसए में है, हमें ये डिस्टेंस फील नहीं होता है। ये डिस्टेंस बैरियर जो मिटाने लगा है ये है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 490. A society is composed of people. The way they behave is their culture. Who said this? A society is composed of people. The way they behave is their culture. Who said this? A. Herskovits, B. Kroeber, C. Ralph Linton, D. Paul Bohannan। इसका करेक्ट आंसर है राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने कहा कि सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ पीपल, द वे दे बिहेव इज देयर कल्चर। क्वेश्चन नंबर 491. कल्चरल डिफ्यूजन मीन्स। कल्चरल डिफ्यूजन क्या है? ए मूवमेंट ऑफ कल्चरल
traits through time, B, movement of cultural traits through space, C, transmission of culture from one generation to the another, D, none of the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, कल्चर. Culture diffusion means culture traits of one society directly or indirectly spread to the other society. इधर इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं है. ये जो सी है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर, इसे हम क्या कहेंगे? इनकल्चरेशन कहेंगे. तो कल्चर डिफ्यूजन है, कल्चर ट्रेट्स ऑफ वन सोसाइटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्प्रेड टू द अदर सोसाइटी. Question number 492. Cultural alternatives are norms that offer to individuals choice of behavior with the various possibilities being A, available, B, almost equally acceptable, C, almost equally the ways of the ancestors, D, none of these. इसका correct answer है A, available. Cultural alternatives are norms that offer to individuals choice of behavior with the various possibilities being available. Question number 493. A subculture is a cultural pattern that is A, different from main cultural stream in such a way that it condemns its major cultural traits. लेकिन सब कल्चर कंडेंस नहीं करता है ऐसे ही कुछ. बी, डिफरेंट फ्रॉम द मेन कल्चरल स्ट्रीम बट हैज इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटीज विथ इट, ये हो सकता है. सी, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मेन कल्चरल स्ट्रीम ऑल्दो इट डज नॉट कंडेम इट्स मेन टेंडेंस, नहीं ये नहीं हो सकता है. डी, नन ऑफ द. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी. Subculture is a cultural pattern that is different from the main cultural stream but has important continuities with it. Question number 494. In the forefront of sociologists using the biological analogy was the British sociologist. Biological analogy जो यूज किए हैं सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में, वो कौन है? वो ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट है, वो कौन है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी सी जे कोले, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी ब्रोनिस्लो मालिनोस्की. इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर. क्वेश्चन नंबर 495. व्हिच स्टेटमेंट ऑन कल्चर इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट कल्चर के बारे में रॉन्ग है? कल्चर इज ए यूनिक, बी स्ट्रक्चर, सी डायनामिक, डी स्टैटिक. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्टैटिक. कल्चर स्टैटिक नहीं होता है ना. चेंज इज द अनचेंजिंग रूल ऑफ नेचर. वैसे भी कल्चर के साथ में देखना चाहिए कि चेंज हर जगह होती है. तो कल्चर इज स्टैटिक ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. कल्चर इज स्टैटिक. क्वेश्चन नंबर 496. इवोल्यूशनरी थ्योरीज कल्चरल पैरेलल were explained through A, diffusion, B, similarity in environment, C, psychic unity of mankind, D, similarity in stage of cultural development. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, psychic unity of mankind. In evolutionary theories, cultural parallel were explained through psychic unity of mankind. Question number 497. The terms cultural drift, syncretism and cultural focus were introduced by. ये सारे टर्म्स किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? ए, डब्ल्यू ऑपवन, बी, हॉस्कोविच, सी, मालिनोस्की, डी, लेस्ली व्हाइट. इसका करेक्ट आंसर है हॉस्कोविच. द टर्म कल्चरल ड्रिफ्ट, सिंक्रेटिज्म एंड कल्चरल फोकस वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉस्कोविच.
क्वेश्चन नंबर 498, which of the following statements are true? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1. All contra cultures are subculture, सही है. 2. All contra cultures are not subcultures, गलत है. 3. All subcultures are contra culture, नहीं ये गलत है. 4. All subcultures are not contra cultures. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. 1 और 4 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑल contra cultures are subcultures, but all subcultures are not contra cultures. Question number 499. Who has classified societies into simple compound, doubly compound and trebly compound? इस टाइप का सोसाइटी को किसने क्लासिफाई किया है? सिंपल कंपाउंड, डबली कंपाउंड, ट्रिपली कंपाउंड. ए. हर्बर्ट स्पेंसर, बी. जॉर्ज सिमल, सी. इमेल दुर्खेम, डी. रॉबर्ट रेडफील्ड. इसका करेक्ट आंसर है Herbert Spencer. Herbert Spencer has classified society into simple compound, doubly compound and trebly compound. Question number 500. ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है. Culture has been classified into 4 types: culture capital, deprivation, domination and reproduction, according to A. Garfinkel, B. Pierre Bourdieu, C. W. Ogburn, D. Ralph Linton. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पियरे बोर्दियू. पियरे बोर्दियू ने से बोला है कल्चर कैपिटल, कल्चर डिप्रीवेशन, कल्चर डोमिनेशन एंड कल्चर रिप्रोडक्शन के बारे में. जैसे कल्चर रिप्रोडक्शन हम समझेंगे जैसे आपका कस्टम हुआ, बिलीफ हुआ, वैल्यूज हुआ, वो सोसाइटी में एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन को कैसे जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में, सोशलाइजेशन प्रोसेस में, फिर भी उसने भी डिफरेंस आ जाता है एलिट क्लास, लोअर क्लास. हैं तो स्कूल में किस टाइप का आपको मिल सकता है एजुकेशन, या आपका एनकल्चरेशन प्रोसेस कैसे होता है. तो ये रिप्रोडक्शन है, जैसे कल्चर रिप्रोडक्शन, जो कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैसे ट्रांसमिट करेगा. तो इसे पियर बोर्दियू ने बोला कि ये कल्चर रिप्रोडक्शन है. ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही. फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में. तब तक बाय बाय.